Now uh, we will read about the Mendelian laws of or Mendelian laws of genetics, or you can say Mendelian laws. Mendelian laws. Mendelian laws. Whatever laws of genetics or Mendelian laws, which were these are certain laws which were described by Mendel in 1866, and he experimented on pea plant. Pea plant. He experimented on pea plant, having distinct features, uh, having having contrasting traits. Contrasting traits. Trait means character. Traits. Contrasting does not mean opposite. Contrasting means, for example, if this is the tall plant, height it is the character. Height it is a trait or character, and height has two uh, sub characters, or you can say characters. That means height is itself a character. One is tall and another one is short. And these two characters, they are known as contrasting. That means height have two contrasting traits, tall and short. Contrasting doesn't mean opposite. Actually, they are the forms of a trait. They are the forms of a character, which are not same, which are different from one another. And these contrasting traits, which Mendel studied in pea plant, they were approximately 7 pairs of traits. 7 pairs of contrasting traits. One was height, in this tall and dwarf. Then seed color. One was green and gray. Seed shape. Ring. Seed color means green and gray, or you can say light. Seed shape, it was round and wrinkled. For example, 1, 2, 3. These were the 7 contrasting traits which Mendel observed in flower color, flower position, and these are some traits on which Mendel worked and produced the laws. And first he experimented on the pea plant in a special type of cross that is known as monohybrid cross. First is monohybrid cross. Cross means cross pollination. Cross, or you can say reproduction. Monohybrid cross, it is the cross. If you can define monohybrid cross, it is the cross in which single pair of contrasting traits are considered, in a cross, or considered in a cross. The cross, monohybrid cross, is that cross in which only single pair of contrasting traits are considered in a cross.
इसका ये मतलब है कि मेंडल ने सिर्फ एक ही कैरेक्टर को एक क्रॉस में, एक रिप्रोडक्शन में या एक टर्म जब उसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है, उसने पी प्लांट के कैरेक्टर जितने भी थे उसमें से सिर्फ एक ही सिलेक्ट किया और उसी पे काम किया। फॉर एग्जाम्पल मेंडल ने जो है प्लांट हाइट पे काम किया, प्लांट हाइट। अब हाइट में दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, एक है टॉल, दूसरा है शॉर्ट, दूसरा है शॉर्ट। और ये दोनों जो है क्योंकि ये एक ही कैरेक्टर है या वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट है, इसलिए मैंने लिखा यहां पे इट इज द क्रॉस इन विच सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर कंसिडर्ड। एक ही पेयर इसमें कंसिडर किया जाता है। उसमें उसने क्या किया है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, उसमें मेंडल ने ये पी प्लांट लाया, इट इज ए पी प्लांट, एक टाल पी प्लांट लाया, टाल पी प्लांट, दैट मीन्स ये फेनोटाइप है। मैंने आपको टर्म समझाई है फेनोटाइप। और ये है शॉर्ट पी प्लांट, शॉर्ट, ये शॉर्ट पी प्लांट है, शॉर्ट, ये भी फेनोटाइप है क्योंकि आप इस पे देखेंगे। अब ये शॉर्ट पी प्लांट जो है ये भी फेनोटाइप है, फेनोटाइप। उसने क्या किया, इन दोनों को क्रॉस किया है क्योंकि इन पी प्लांट्स पे फ्लावर होते हैं। ये फ्लावर है लाइक दिस, ये फ्लावर है, इसमें भी अपना फ्लावर है, इसमें भी अपना फ्लावर है। उसने क्या किया है, टाल प्लांट को शॉर्ट प्लांट के साथ इसके पोलन ग्रेन्स जो हैं इसके स्टिग्मा पे डाल दिए या इसके पोलन ग्रेन्स जो हैं इसके इस पे डाल दिए हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसको हम बोलते हैं रिवर्स क्रॉस। रिवर्स क्रॉस का मतलब क्या है, जब कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो, चाहे ये वाला मेल हो ये फीमेल हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें जो ये क्रॉस मेंडल ने किया है, मेंडल ने क्या किया है, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स डाल दिए हैं दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे। अब यहाँ पे क्या, इस फ्लावर में तो दाना बनेगा, अब यहाँ पे ऐसे पॉड बनेगा, इसमें ऐसे मटर के दाने बनेंगे। आफ्टर जब उसने ये मटर के दाने देख लिए हैं और फिर ज़मीन में लगा दिए हैं, उसके ऑफस्प्रिंग जब ये मटर दाना ज़मीन से फिर उग गया है तो उससे एक ऐसा प्लांट निकला जो बड़ा था, टाल था, ये टाल था। तो उसने सोचा कि जो मैंने रिप्रोडक्शन करवाया है शॉर्ट और टाल को तो उसका बच्चा जो ऑफस्प्रिंग आया है या F1 जनरेशन आई है वो टाल है। ये फेनोटिपिकली ये देख रहा है, फेनोटिपिकली तो ये टाल प्लांट जो है उसने सोचा शायद इस बड़े वाले ने इस छोटे वाले को खाया है, कि ये बड़ा वाला कैरेक्टर जो है ये छोटे वाले कैरेक्टर को खा रहा है, इसने उसको बंद किया है, सिर्फ खुद ही आ गया है बाहर, तो ये टाल हो गया है। तो उसके माइंड के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट था। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया है, ये फिनोटिपिक के लिए मैं बता रहा हूं। अब क्योंकि अब इस पे खुद क्या आएगा, फ्लावर आएगा, इस पे खुद फ्लावर आएगा। अब ये फ्लावर जो है लाइक दिस, अब ये फ्लावर जो है इस फ्लावर में उसने सेल्फिंग करवाया, सेल्फिंग दैट मीन्स F1 जनरेशन में उसने सेल्फिंग करवाया। यहां के पोलन ग्रेन्स इस पे डाल दिए और फिर जब यहां पे ये दाने बनेंगे, ऐसे दाने बनेंगे, फिर ये दाने जो हैं जमीन में लगा दिए, दैट मीन्स ये F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन, सेकंड फीलियल जनरेशन, ऑफस्प्रिंग का ऑफस्प्रिंग।
तो जब उसने ये दाने लगा दिए ज़मीन में, अगर उसने फॉर एग्जांपल 4 दाने यहाँ से उठाए, जितने भी पहले वाले एक्सपेरिमेंट से दाने उठाए सब में बड़ा निकला। अब जब दूसरे में सेल्फिंग करवाया है, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया है, तो जितने भी दाने उसने निकाले और सब ज़मीन में लगा दिए। उसने क्या देखा कि अगर 4 दाने थे या 100 दाने थे, तो 100 में से जो है 75 टाल थे, या 4 में से जो थे 3 टाल थे, लेकिन एक शॉर्ट था। तो ये F2 जनरेशन जो है, F2 जनरेशन, उसमें उसने एक अहम इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लिया कि जब मैंने सेल्फिंग करवाया तो F2 में एक मुझे नया रिजल्ट आ गया। 3 जो थे वो टाल थे, 3 जो थे वो टाल थे, और एक जो है वो शॉर्ट है। तो जो उसने पहले सोचा था कि शायद इस बड़े वाले कैरेक्टर ने छोटा वाला कैरेक्टर जो खाया था, लेकिन दूसरी क्रास में उसने ये देखा कि ये छोटा वाला कैरेक्टर बड़े वाले ने नहीं खाया था, बल्कि इसने इसको छुपा के रखा था, उसने उसको रिसेसिव बना के रखा था। तो बड़ा वाला डोमिनेंट है और छोटा वाला रिसेसिव है। तो दैट मीन उसने 3 प्लांट जो है वो टाल थे, और एक जो है वो है शॉर्ट। तो दिस रेशो 3:1 रेशो, इसको हम बोलते हैं फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशो। फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशो, फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशो, ये उसने निकाला है मोनोहाइब्रिड रेशो जो फिनोटिपिक है, जो उसने देखा है। तो जीनोटिपिक इसके बाद जो है जीनोटिपिक रेशो हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे। थैंक यू।